sessions that, as name suggests, this is a diet info session. So we are going to address some of the myths that we talk about it, and definitely this myths that we got the few questions from our clients only, and and after that maybe some questions you get the answer during when our dietitian Tanya will speak about it, and maybe if certain things you are still not clear, you may ask your queries. तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं. Tanya जो है, she is with us, and she has done masters in nutrition. Her MSc is there, and last 10 years she's practicing this, and I request Tanya that she can give better brief about herself and her experience. Over to you, Tanya. Yeah, hi Divi. I hope Tanya is, yeah. Yeah, can you hear me? Am I audible? Yes, of course. Yes, you are. Yeah. Hi Divi, hi everyone. Hello ma'am, good evening. Hello, good evening. कैसे हो आप लोग? ठीक है मैम. Fine ma'am, we all are fine. All right. So first of all, अगर आपके if you have some questions regarding diet or anything, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. Otherwise, there are some myths about diet and all. So I would like to clear that. Hello. Yes, Tanya. So one of the questions that usually we get from the clients, that they say, they are doing everything for their diet management, especially when they talk about the weight management. So they say that we do everything, but still we are not getting the results. So I would, yeah. Yeah, so basically it's a very common question. So what happens, it depends what type of diet they are having, right? Are they monitoring everything? Are they maintaining the calorie counter that we suggest? Or are they doing the physical activity which is required? See, weight loss or weight management is the only thing that can happen after the negative calorie balance. Suppose if a person requires 1200 or 1400 calories, if they require 1200 calories and they are doing activity which will only give the results of 1100 calories. So in that case, they will be having a gain of 100 calories. So there will not be any kind of weight loss. If they want weight loss, they need to go for negative calorie balance. Okay. Okay. Yeah. So आप ये कह रहे हैं कि जितना हमें कैलोरीज चाहिए उसको अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वेट रिडक्शन नहीं होगा. You mean to say that? No, I didn't mean that. I mean, if like suppose if we are having 1200 calories, right? और जो हम physical activity कर रहे हैं, अगर उस physical activity से overall the day हमारा जो output है, यानी जो हम calorie burn कर रहे हैं, वो 1200 से कम है, तो weight loss आपको नहीं दिखेगा. अगर हमारा एक्टिविटी उससे ज्यादा है, 1200 से ज्यादा है, और 1200 हम कंज्यूम कर चुके हैं और हमारा आउटपुट उससे ज्यादा है, अगर हमने एक्सरसाइज किया और 1200 कैलोरी बर्न हो चुका है, तो वेट लॉस डेफिनेटली होगा. वेट लॉस नहीं होगा तो एटलीस्ट वेट विल बी मेंटेन. So weight loss is possible only in the case when there is any kind of negative calorie balance. एक फीमेल की बॉडी रिक्वायरमेंट जो होती है that is 2000. एक नॉर्मल हेल्दी वुमेन जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट फॉर अ हेल्दी वेट इज ओनली 2000. अगर वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं है तो, जैसे बहुत से होते हैं जिनका वर्किंग रहता है फुल डे का, तो अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका मेंटेन रहता है तो कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी 1200 से 1400 रह जाती है फीमेल में. अगर आप मॉडरेट वर्कर हो तो वही आपकी रिक्वायरमेंट 1500 से 1700 रह जाती है. और अगर आप हैवी वर्कर हो, जिनका जैसे आपने देखा होगा वर्किंग बहुत ज्यादा रहती है, इन दैट केस आपकी रिक्वायरमेंट 18 से 2000 तक हो जाती है. सो इट इज लाइक दैट. Okay. I would request any one of you, if you have your own query, then we can. Yes, Rashmita ji.
You can unmute yourself and then raise your query. Good evening. Good evening, Act- ma'am. During the COVID, means 3 years back, I was 71 kgs, and then I started eating and everything, and I reached on 62 kgs. From last 2 Okay. years, the weight is still 62. It's not going Okay. up, down. If I make some cheat day on weekends or something, definitely because I have just a proper count on what kind of carbs I'm having, on which kind of protein I'm having. I'm just very particular with my कि इतना इसमें calories है, इतने इतना calories है, I should not cross. हाँ, weekends when I eat something, it goes 63. Again, if I eat all the according to my diet plan, it will come 62. Last 1.5 2 years, it's just stagnant on 62. Neither it's going down, neither it's going up. And I'm doing my yoga and my workout, everything I'm doing, my walk, everything. Okay. So, ma'am, what is your age? Now I'm 40. 40. Rashmita ji, Periods I'm are sorry, regular, but they are normal? I found you. Yes, ma'am. Rashmita ji, I found you quite fit. I'm sorry to say, but I found you quite fit, in my opinion. Maybe you say your weight is not increasing, decreasing, but I think Is other that- ladies should be agree with me that you are quite fit as per their age, and I have found you that. Thank you, ma'am. That's what Thank I you. was asking, what is your age and what is your height exactly? Maybe there is no requirement of weight loss. Maybe, I don't know, maybe because my profile wise like that, so I'm hostess and my height is 5'5", so I'm not expecting my weight should be like 55, or it's not 55, then No, it should be like ma'am. See, if your height is 5'5", you should be under 60. If it is 62, then it is okay. There is no requirement of weight loss. अगर आप अपनी कैलोरीज में थोड़ा सा भी डाउन करोगे और अपनी एक्टिविटी थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे, राइट, okay. तो आपका अपने आप से थोड़ा सा वेट जो है माइनस अप डाउन होता रहेगा. इट इज क्वाइट नॉर्मल. 1 or 2 kg अपने टारगेट से ऊपर होना. इट्स क्वाइट नॉर्मल. इट्स हेल्दी, Okay, राइट. तो 5'5" में अगर आप 60 तक हो तो इट इज क्वाइट फाइन. 62 अगर उसमें है तो उसके लिए आप अगर अपना कार्बोहाइड्रेट पे थोड़ा भी कंट्रोल करोगे, राइट, इफ यू विल कट योर कार्ब्स, तो वेट आपका अपने आप से थोड़ा धीरे धीरे ना डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. to again work on my carbs, because I make sure, because I finish my dinner by 7:30 max. I don't eat after that. टाइमिंग से मैम, सी टाइमिंग्स डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ वेट लॉस. इट इज ऑलवेज अबाउट द कैलोरीज दैट विल हेल्प यू टू लूज वेट. अगर आप कैलोरीज अपने अकॉर्डिंगली कम ले रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है, तो वेट अपने आप ही होने लगेगा. आप बोल रहे हो कि आपका हमेशा से एक ही स्केड्यूल रहा है, आप उसमें थोड़ा सा चेंज करोगे ना. अगर आप अपना रात का जो डिनर का मील है उसमें कार्ब्स कट कर दोगे, इफ इट इज ओनली प्रोटीन, तो आपका अपने आप से वेट डाउन होना शुरू हो जाएगा, है ना. इट कैन बी प्रोटीन आप ले सकते हो. आप कार्ब्स यानी कार्ब्स में आपका चपाती, आपके सीरियल्स जो हम कई बारी ओट्स ले लेते हैं, पॉरिज ले लेते हैं, दैट इज आल्सो कार्ब्स, है ना. सीरियल्स तो वो भी हैं. तो उसमें आप ट्राई करो. कभी आपने सिर्फ ये रेड लेंटिल सूप ले लिया, कभी आपने सिर्फ एक ग्रीन वेजिटेबल बना के खा ली, सॉटे करके खा ली, तो वो आप कार्ब्स कट करके स्टार्ट करो डिनर में 1 वीक. आप देखो आपका वेट डाउन हो जाएगा. Done, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so very much. I'll make sure I'll do that. Thank you. Next, Yeah. I think, yeah, thank you. I think Priyanka ma'am has raised their hand, and Sunita ma'am also. One by one, any one of you can ask. Yeah, hello, ma'am. Hi, Priyanka Actually, ma'am. I'm 38 years old and suffering from thyroid and sugar both, diabetes both. Okay. And it's been 7-8 years. I'm diabetic. Okay. So almost 3 years back, I worked out and I wasn't doing any job. So I lost around 12 kgs of weight and I went up to 65 kgs. And my Okay. medicines were completely off. I wasn't taking any medicine for diabetes. There were only medicines for thyroid. But after 3 Okay. years, medicine started again because I made some changes in my eating habits. So now, from 6 months almost, I'm doing yoga, but my diabetes is not in control. In fact, I'm controlling my diet also. I'm giving a very good control on my diet. I'm exercising 1.5 hour almost in gym. I'm spending 1.5 hour in gym and 1 hour yoga with Always Life Yoga, and then I do walk for 1 hour almost. But the weight is not going down, and my sugars are also not going down. In fact, I'm taking medicines also now. Okay. For sugar. Yeah.
लास्ट आपने थायराइड का रिपोर्ट कब कराया था मैम, इन्वेस्टिगेशन? Thyroid, ma'am, it's 1 month back. Thyroid was okay. Okay, so you are taking Sugars are altoxin going or like Theranom? I'm on Theranom, ma'am. Theranom 37.5 mg. 37.5 mcg. Okay, Yeah, all ma'am. right. So what type of diet you are following, Abhi? Ma'am, it's like I'm giving like more importance to the protein. I'm taking more over the protein diet, and in morning I take usually oats with milk and almonds only. And I'm taking multigrain roti, not even that normal roti we take. And whenever I take rice, and I take it boiled rice, steamed It rice. should be I will. try to switch to brown rice, ma'am. They are high in fiber. They are not polished. Okay. White rice is polished rice, which is low in fiber. All Okay. right. Okay. Next, ma'am. And in the night, I avoid carbs, as you said. So I take sometimes I take dal, sometimes I take rajma salad or chana salad. Sometimes I take eggs or chila, something like that. So you are But, vegetarian? the sugar is, Vegetarian, ma'am. I am vegetarian, you can say. Okay, you can have eggs. Okay. Okay. All right, ma'am. So like that, as I have told you earlier, there is a requirement of calorie counter. आपको एक बारी you need to maintain मतलब basically आपको एक schedule बनाना पड़ेगा, right? आप कैलोरीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कैलोरीज आप कितना ले रहे हो ओवरऑल डे और रिक्वायरमेंट कितना है. आप फिजिकल एक्टिविटी आप बोल रहे हो दैट यू आर स्पेंडिंग 1.5 hour इन जिम, राइट? तो क्या कर रहे हो आप वहाँ पे? कार्डियो कर रहे हैं, वेट्स कर रहे हैं, या I'm doing complete body workout. Sometimes only cardio, Okay. and sometimes cardio plus weight training as well. So I'm doing it completely, Okay. completely body workout I'm doing. Yes. All right. And then I do Apart 1 hour from yoga also. Okay, in spite of doing all these things, आपको लग रहा है कि weight loss बिल्कुल भी नहीं हो रहा है? Ma'am, weight is stuck on 72. It's not going down. ये जो चेक कर रहे हो मैम, ये कहाँ चेक कर रहे हो? आप घर पे कर रहे हो या जिम में कर रहे हो? I have the weighing machine, and there is a weighing machine in gym also. So there are two weighing machines on which I'm checking that the weight is going same. All right. So ma'am, the machine they are having in the gym, is that complete body composition analysis machine or a normal machine? No, it's a normal machine, ma'am. It's not a body analysis. So that was my question. So we need to monitor this thing. Sometimes what happens that we convert our fat into the muscles. If we are doing like we are doing lots of exercises, we are spending 1.5 hour in gym. We are doing yoga also. Sometimes what happens, our fat converts into the muscles. So there see. मैं आपको कॉम्पोजिशन थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी. वहां पर बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस अगर मशीन होगा इन जिम, आप एक बार पूछ लेना. वेट दो आपका सी देयर आर 2 parts, फैट पार्ट एंड लीन पार्ट, राइट? अगर आपका फैट ज्यादा है तो आपका लीन पार्ट कम होगा. इफ यू आर डूइंग एक्टिविटी, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, द फैट कन्वर्ट्स इनटू द मसल्स. आप एक वीक के लिए ट्राई करो कि आप जिम में सिर्फ कार्डियो करिए, नो वेट्स, नथिंग लाइक दैट. ओके, ठीक है. और जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, ट्राई टू कट योर कार्ब्स स्पेशली इन द डिनर टाइम. ओके, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. या सो आप खुद ही इन अ वीक यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज. ओके ओके मैम, लेट मी चेक दैट. जब हम जिम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी टोन हो रही होती है, बट हमें वेट में कोई डिफरेंस नहीं दिखता. उसका रीजन यही होता है दैट वी कन्वर्ट आवर फैट इनटू द मसल्स. ओके, that's what I'm feeling, ma'am. There is some of the inch loss, but weight loss is not happening. Toning will be there, definitely there will be toning. So but fat, because आपका body में weight तो उतना ही है, but जो fat है that has converted into muscles, so there will be toning. Majorly I'm concerned about the diabetic part, ma'am. The diabetes is not in control. Recently I've got my HbA1c checked, and that is 7.5. Ma'am, for that purpose, you need to share reports with me, right? आप एक बार अपनी रिपोर्ट्स जो भी इन्वेस्टिगेशन रिसेंट हो काइंडली शेयर विद मी. आपको मैं थोड़ा सा बेटर असेसमेंट आपको बता पाऊंगी, राइट? Where I can share this with you, ma'am? Divi, hello. Yes. Divi, so एक बार ही आप मैम से एक बार बात कर लेना, where she can share her reports with me. प्रियंका मैम, आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमें अपनी रिपोर्ट्स. मैं I will share with Tanya also, and then if any feedback comes to us, we will give you.
Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you Okay. so much for your time, ma'am. Thank you. Yeah. Next, Sunita ma'am was asking some query. I would say be specific on your queries because बहुत सारे लोगों का hand raise है and we have a less time to answer it. Yes, Sunita ma'am, do you have any specific query related to your weight? हेलो मैम Ma'am, please unmute yourself. जी अनम्यूट हो गया मैम हाँ जी सुनीता मैम, हेलो गुड इवनिंग मैम आप unmute कर. गुड इवनिंग। हाँ. मैम मेरा वेट 63 है 63 है मेरी हाइट है 5 है पूरी तो इस हिसाब से मेरा वेट कितनी होना चाहिए आपका और वेट मैम अंडर 50, इट शुड बी अंडर 50। तो मैम मेरा सबसे ज्यादा पेट पर मेरा फेट बहुत ज्यादा है मैम मैम Lower देखो fat. बेली फैट कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टू कंट्रोल योर डाइट, ठीक है। जी मैम आपका हाइट 5 है, अगर आपकी एज क्या है मैम, व्हाट इज योर एज? 50 50 है एज, ओके। पीरियड्स है अभी या मेनोपॉज हो गया मैम? नहीं मैम मेरा 15 इयर्स मतलब 15 साल पहले मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था उससे मेरा यूट्रस अच्छा, निकाल दिया हिस्टेक्टोमी हो गया, ओके तो हिस्टेक्टोमी हो गया। 15-20 मतलब 16 साल से ये मेरा बंद है मैम सब ये आपने ऑब्जर्व किया जो वेट आपका गेन हुआ है आफ्टर द सर्जरी ज्यादा जी। हो गया है? जी 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 ये मैम सर्जरी के इसका बाद एक थोड़ा सा ना साइड इफेक्ट होता है हिस्टेक्टोमी का, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो उसके जी लिए सुनीता मैम आपको डाइट पे, हाँ जी जी मेरा पहले 80 हो गया था वेट तो मैंने इसको धीरे धीरे कर करके 63 तक मैं ले आई हूँ इसको लेकिन मैम अब Okay. ये अब यहीं पर ये 3-4 महीने से रुका हुआ ये नहीं वो मुझसे हो पा रहा है मैम ये तो आपने इतना जो कम किया 80 से 63, वो कैसे किया आपने? मैम मैंने एक कमेटी ज्वाइन किया था उसमें वो अपनी डाइट Committee? प्रोटीन और सब मिलाते थे उसकी नाम तो मैं भूल गई मैम तो मैंने 6-7 महीने में कुछ ये एमवे जैसा कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए थे आपने? जी मैम ओके तो वो 6-7 महीने में उन्होंने मेरा 63 कर दिया था लेकिन उसके बाद मेरा तब से 3-4 महीने से रुका हुआ फिर मेरा वो ही नहीं रहा है मैम कम और सबसे मेरा फैट से पेट देखिए क्या होता है, ये जो भी ये सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ये जो एमवे हो गया, ये हर्बल लाइफ हो गया, न्यूट्री लाइफ हो गया, ये ड्रिंक्स वगैरह हम ले तो लेते हैं, बेसिकली ये लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करते हैं, राइट। देखिए जी। कोई भी ड्रिंक हमारे मील को ऑल्टर नहीं कर सकता, हर न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, किसी ना किसी चीज का मैम अगर एक आप उसमें उसको यूज कर रहे हो, वेट लॉस अगर वो इतना ड्रास्टिक दे रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। वंस वी स्टार्ट टू गेन, तो फिर एकदम से जो, अब जैसे आप बोल रहे हो सेंट्रल ओबेसिटी है आपको टमी पे, जब हम वेट गेन करेंगे आफ्टर हिस्टेक्टोमी बहुत सारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, राइट। तो वेट टेंडेंसी होती है मैम पर्सन टू पर्सन जो वेरी करती है, किसी की थाइस पे होती है, किसी की बस्ट पे होती है, किसी की एब्डोमेन पे होती है, किसी की आर्म्स पे होती है, आपकी वो टमी पे है ना। जी तो इस वजह से आपका हाइट वैसे यूजुअली भी कम लगता होगा देखने में। अगर जी आप थोड़ा सा, एक तो ये है कि अगर आपको बेली फैट कम करना है उसके लिए आप अपनी डाइट में लिक्विड्स बहुत ऐड करिए, है ना। हर्बल टी है, ग्रीन टी है ना, नॉर्मल जैसे आप, अब तो जैसे जी सीजन चेंज हो जाएगा तो आप लेमन वाटर भी ले सकते हो अगर आपको सूट करता है तो, ठीक है। और बेली फैट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो टमी की ही होती है, जैसे योगा में आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी इस चीज से। तो जी बेली फैट कम करने का सबसे ज्यादा जो मैम आपको हेल्प करेगा वो डाइट करेगा और एक्टिविटी ही करेगी। बाकी फ्रूट्स अपनी डाइट में आप और ऐड कीजिए, है ना। एब्स की एक्सरसाइजेस करते रहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं मैम मेजर कोई नहीं मैम एसिडिटी बहुत होती थी और ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम से बड़ी बड़ी कोई नहीं मैम पानी खड़े होके पीते हैं आप? लगभग कभी कभी नीता मैम हाँ, कितनी बंद स्वीट कर है, बोलती दीजिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती, बड़ी कुछ नहीं होती. वेरी नहीं स्वीट तो पानी मैम. अगर खड़े खड़े होके पानी पीते हैं तो बैठ के पानी पीना शुरू कर दीजिए, है ना। तो जो हल्का फुल्का कभी कभी घुटनों में दर्द होता होगा या आपके तलवों में नीचे दर्द होता होगा हील्स में, वो भी बंद हो जाएगा। जी मैम घुटनों में नहीं मैं नीचे मसल जो होती है उसमें पेन रहता है घुटनों हाँ में हाँ तो हाँ, पहले बहुत होता था वो लेकिन वेट वो लॉस के बाद घुटनों में प्रॉब्लम आपका, काफी कम हो गया है हाँ लेकिन ये हाँ, वेट वो ये धीरे बस धीरे पीछे और भी, धीरे धीरे और भी कम हो जाएगा। अगर आपको जो छोटी मोटी आप बोल रहे हो जो दिक्कतें हल्की फुल्की रहती है वो भी बेटर हो जाएंगी, एसिडिटी भी कम हो जाएगी। वो जी होता है मैम ना कि हम लोग किचन में काम करते करते भागते फिरते पानी पीते हैं, खड़े खड़े पी लिया यही एक किचन में गिलास काम दो करते गिलास, अब करते तो पानी पानी तो मैं बहुत इंटेक करती हूँ मतलब कम पानी तो काफी पी हाँ लेती हूँ ना मुंह बहुत सूखता है हमेशा लगता है जैसे सूखा हुआ मुंह रहता है
तो पानी तो मैं पीती रहती हूँ, बहुत काफी पानी पी लेती हूँ, लेकिन बस ये है कि जैसे किचन में काम करते करते अपना खड़े खड़े ही पी लिए। कोशिश किया करिए। देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हर बार हम बैठ के पानी पिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स जो घर में काम कर रही होती हैं, बट ट्राई कि आप थोड़ा बैठ के उसको कोशिश करो कि बैठ के पियो। जी मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू सुनीता मैम। राधिका मैम, यस। हेलो मैम। हेलो जी, हेलो। कैसे हो साधिका जी? बढ़िया मैम। मैडम मैं मतलब चेंज करती हूँ ना खाने में, जैसे भी डाइट का कुछ भी खाने वाले फ्रूट, तो फिर बहुत वीकनेस लगती है, ऐसा क्यों मैडम? कुछ भी मतलब चेंज कैसे करूँ कैसे तो मतलब देखो मतलब चेंज कभी डाइट भी में, करोगे कैसे भी, जैसे तो डाइट थोड़ा लिए बहुत तो आप, हाँ हाँ बताइए प्लीज, आप बोलिए पहले। वीकनेस लगती है, जैसे मैंने चाय के बदले मैंने ग्रीन टी ले ली, बहुत वीकनेस लगती है मेरे को। वो वहां वैसे नहीं होती, वो यहाँ से होती है। नहीं मैडम, सही में बॉडी पता नहीं वो वो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। चाय में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता जो आपको उससे कोई वीकनेस लगे। शुगर की वजह से जरूर वीकनेस हो सकती है, जब बॉडी में ग्लूकोज कम होता है तो वीकनेस लग सकती है। बट अगर आपको उसकी वजह से सिर्फ आपको लग रहा है कि मैंने नॉर्मल चाय की जगह पर ग्रीन टी हर्बल टी ले ली, उस वजह से वीकनेस है, इसका मतलब आप सोचो कि आप कितना शुगर ले रहे थे। एक अच्छा छोटा स्पून चम्मच जो होता है, जो चीनी का 20 कैलोरीज देता है, विच इज वेस्ट, उसकी कोई जरूरत नहीं है बॉडी को। आप मुझे नहीं बताओ, मैंने एक कप चाय का कोई न्यूट्रिशन देता है? नहीं तानिया, देता। पर इससे चाय तो बढ़िया आप बहुत जरूरी है। नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं अपने किसी भी, जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं, किसी को मना नहीं किया। मैंने उनको बोला विंटर्स में चाय लेनी है आप लोग, मैंने बाकी चीजों में कट किया ना। तो इट इज इम्पोर्टेंट। बट जैसे अब मैम ने बोला कि मुझे वीकनेस होती है, तो चाय ना पीने से वीकनेस कभी नहीं होगी। Yes. वो नहीं मैडम, शुगर की वजह से होता है। नहीं मैडम, जिस खाने में भी चेंज किया, जैसे फ्रूट्स ले लिया कभी कभी वो खाने के वो वो बदले, वो होता तो है। वो उसका रीजन मैं बता देती हूँ क्या होता है। जब आप मील ले रहे होते हो, जैसे हमने रोटी खाई, दाल खाया, सब्जी खाया, आपकी बॉडी जी में प्रोटीन भी गया दाल से, फाइबर गया सब्जी से, है ना, और कार्बोहाइड्रेट रोटी जो है वो, उससे आपका शुगर कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सब आपका बॉडी में शुगर जा रहा होता है। जी तो वो सटाइटी देता है बॉडी को। फिर आप उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दोगे सैलेड या फ्रूट्स में, जो सिर्फ फाइबर है और वाटर है, तो वीकनेस होगी। क्योंकि अगर सी, आपने देखा होगा इंटरमिटेंट लोग करते हैं बहुत, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है, जी जिसमें जी 8 से 12 घंटे तक लोग खुद को भूखा रखते हैं। वो मैं जी कभी सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि जब आप वंस यू स्टार्ट ईटिंग नॉर्मली, आप वापस से पुट ऑन करोगे, वो भी डबल। जी 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 वो ऐसे लोग ही। बहुत ज्यादा डाइट करते हैं, बहुत ज्यादा, कि अब मेरा जा ही नहीं रहा, मैं पिछले 3 साल से डाइटिंग कर रही हूँ और अब मेरा जा ही नहीं रहा, जाएगा भी नहीं। आपने ऑलरेडी अपनी बॉडी को यूज टू कर लिया है, तो उनको फिर हम नॉर्मल डाइट पे लाना शुरू करते हैं। अच्छा कितना बढ़ेगा आप मुझे बताओ? अगर आपको लगता है कि डाइटिंग का मतलब है ना खाना, कम खाना, स्टार्व करना, नो। डाइटिंग का मतलब है हेल्दी और बैलेंस खाना। अगर मैं आपको 1 वीक तक सिर्फ जो आप ले रहे हो उसी को लिख के दे दूं पेपर पे, और आप वो फॉलो करो, आप तो भी 1 kg लूज कर जाओगे 15 डेज में, जस्ट बाय मॉनिटरिंग। ओके मैम। तो अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो रिप्लेस करके किसी मील को, तो फ्रूट्स को हेल्दी बना लो, है ना। इट कैन बी कॉर्न सैलेड। अगर आप प्रोसेस्ड फ्रूट्स ही खाना चाह रहे हो, तो उसमें एक बनाना ऐड कर लो, वो आपको सटाइटी जी देगा। सबसे हेल्दी फ्रूट होता है। एक बनाना से वेट नहीं बढ़ता। जी जी अगर आप एक दिन में 6 बनाना लेते हो, इट्स अ मैडम। डिटॉक्स डाइट, हाई पोटेशियम होता है, आप वेट लॉस करोगे। अच्छा मैडम, वेट ठीक है, लॉस मैडम, शुगर लेनी है मतलब, जैसे शुगर देखो तो सिर्फ पूरे चाय दिन में में लेती जैसे हूँ। जैसे 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 किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऑयल रिक्वायर होता है, ऐसे बॉडी को चलाने के लिए ऑयल रिक्वायर होता है। आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट में 1 टीस्पून ऑयल इज वेरी मैंडेटरी, ओके मैम। है ना। तो आपको पानी, ऑयल, शुगर, सॉल्ट सब लेना है, बट उसकी क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। हम लोग तो कई बार टेस्ट के लिए ऐड ऑन कर देते हैं ना। ओके राजमा, राइस, नॉनवेज, ये सब आपको सजेस्टेड है अगर आप खाते हो तो। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसको बना कैसे रहे हो। जरूरी थोड़ी है कि आप फ्राई फिश खा रहे हो या राजमा राइस की ग्रेवी बहुत रिच बना रहे हो, लोग बटर डालते हैं उसमें। ठीक है, तो उसको आप मेंटेन करो कि आप ग्रेवी कैसी बना रहे हो, तो बहुत हेल्दी होता है। ओके मैम। ओके, तो थैंक मैडम यू। मेरा वेट भी मैंने 70 है वेट। मैम वेट आपकी बहुत है हाइट मेरा। कितनी है? मैम 5'5". हाँ, तो वेट तो कम करना है आपको, 62 63 यस तक लेके आना है आपको, है ना। सिक्स यस सेवन मैम। केजी आपको लूज करना है। देखो मैं जी आपको डिटेल में अभी इतना तो नहीं बता सकती, बट आप एक बारी बात कर लीजिएगा दीदी से
तो आप कनेक्ट कर लेना। लेकिन ये है कि अगर कोई नॉन मेडिकल कैटेगरी है तो 1 मंथ में आप आराम से अप टू 3 kgs लूज कर जाते हो। इट इज वेरी सिंपल। ओके मैडम। Okay. ओके मैडम। Thank you. Okay. Nirmala ji. Next. थैंक यू मैम। वेलकम। Hello. Good evening, Ma'am. Yes, Nirmala yes, here. Ma'am, I'm 49 years and 70 kg weight, and my height is 5.2. And I'm having menopause. It's almost 6 years now that I got my menopause. So I have knee pains. Other than that, I don't have any other issues. ओके Just wanted to check on the calcium intake. I want to, because see, whatever problem I have is only related to my bones after menopause. ओके So just want to check calcium rich foods that will not add my weight. No, if you are taking calcium rich foods, it will not increase your weight. It is always, Okay. as I've told you earlier, it is always about calories. If you are taking calcium rich foods and your calories are same as older one, you will not gain any kind of weight. It will be maintained. Oh, no, can you please suggest me some foods, calcium rich foods that will help me, which I can just include in my daily intake, daily. See, ma'am, if you are having a balanced diet, which is, like if you are taking all, see, you are South Indian, right? Yes, Hello? yes, I'm a South You are Indian, South Indian, right? Okay, so you are vegetarian or non-vegetarian, ma'am? non-vegetarian. Non-vegetarian. So basically, what type of food you eat usually, like idli and all? ये आप सारा कुछ follow करते हो? No, usually for the breakfast, I eat sorted vegetables and boiled egg and one Okay. fruit in the morning, and lunch will be steamed rice along with dal and green leaves curry and one more curry and curd. That will be my regular meal, and evening one chapati and with curry, any curry. One chapati. Evening, one chapati and curry. Yes. Okay. Or any fruits or something like that, nuts and seeds? Fruits and nuts I take it in between the meals. So morning mid morning snacks I take some nuts, and in the evening mid evening snacks I take fruit. Okay. So any dairy products like milk, coffee, something like Yeah, that? milk, only milk, and without sugar. I add little bit of ghee and I'll have it before going to bed. Okay. With So, jaggery. ma'am, okay, with jaggery. Okay, ma'am. So, ma'am, you can have multi-grain roti. You can have ragi roti, jowar roti. They are rich Okay. in calcium. You can have soya bean. You can have soya milk also. Okay. And all green vegetables, they all are rich in calcium, especially spinach. Okay. Okay, ma'am. So, otherwise, अगर कुछ डिटेल में आपको और चाहिए होगा, so you can ask दीदी, मैं आपको डिटेल में एक PDF sort of है वो शेयर कर दूंगी. Okay. And ma'am, what about till? Because I heard that sesame seeds are very good and rich in calcium. All seeds are good, ma'am. All seeds are good. Okay. Okay. Okay, ma'am. Thank you. All right. Next is Pallavi ma'am. हेलो हाँ पल्लवी मैम बताइए. हाँ मैम एक्चुअली मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ. Okay. हाँ मैं 38 एज हूँ. मेरी हाइट 5'3" है और वजन मेरा 70 है. तो वो कम नहीं बहुत हो सारा रहा है. वेट कर लिया आपने. हाँ मैम कम नहीं हो रहा है, पर एक्चुअली मैं 2 टाइम ही खाना खाती हूँ, सुबह और शाम को. ज्यादा तो भाकरी ले लेती हूँ और What is सब्जी और भाकरी, ma'am? सलाद. अभी बाजरी की लेती हूँ, बाजरी और ज्वारी. चपाती तो नहीं खाती ज्यादा तो. और मैम हम वेजिटेरियन है, पर अब मुझे विटामिन D3 और विटामिन B12 का चेक किया तो डेफिशिएंसी बता रहे हैं. हाँ इंडिया में जितने भी मैम वेजिटेरियंस हैं 70% और जिनमें डेफिशिएंसी होती है B12 की. इट इज वेरी कॉमन फीमेल्स में, सो इट्स नॉर्मल. तो उसके लिए थोड़े से कुछ है डाइट में आपको ऐड करने होते हैं, है ना. थोड़ा सा डाइट पे अपना कंट्रोल मतलब रेगुलेट करिए, मॉनिटर करिए आप कैसे ले रहे हो वेट, तो क्योंकि आपका ज्यादा है ही. हाँ मैम कम नहीं हो रहा है, 70 के नीचे जा नहीं रहा है. क्या एज है आपकी? 38.
38 है। कोई मेडिकल प्रॉब्लम आपको, बीपी, शुगर, थायराइड? नो नो मैम, कोई भी नहीं है मेडिकल इशू। ओके, तो मैम थोड़ा सा डिटेल में तो मैं आपको हेल्प तभी कर पाऊंगी जब थोड़ा सा मेरे को आप अपना शेड्यूल बताओगे, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच। अब जैसे आपने बोला आपने 2 मील्स ही लेते हो। हाँ, मैं सुबह 9:30 बजे खाना खाती हूँ, भाकरी, सब्जी और सलाद, और शाम को 6 भाकरी बजे। क्या भाकरी क्या होता है मैम? इट्स अ वेजिटेबल और व्हाट? हाँ, वेजिटेबल रोटी, बाजरी की रोटी, ज्वार की रोटी। अच्छा, ओके, मल्टीग्रेन रोटी बोल रहे हो आप। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, और फिर रात में कब खाते हो आप? 6 बजे खाती हूँ मैं। उसके बाद आप कुछ नहीं खाते? नहीं मैम, सफिशिएंट हो जाता है। अच्छा, और क्या आपका स्लीप साइकिल क्या है, मतलब टाइमिंग क्या है, कब सोते हो आप? 10 बजे सोती हूँ, और सुबह 6 बजे, तो 5:30 6 बजे उठ। 6 to 10, मतलब ये 4 घंटे आप कुछ नहीं खाते? नॉट इवन मंचिंग? नो मैम, नो, खाली पानी सफिशिएंट होता था। और आपको एसिडिटी या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम? नो मैम, नो मैम। नहीं रहता। ठीक है मैम, देखो मील्स जो हम सजेस्ट करते हैं वो होता है 3 मेजर मील्स और 3 शॉर्ट मील्स। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ओके, आप मील्स कम ले रहे हो। हाँ, मैं सुबह फ्रूट्स भी खाती हूँ, सलाद भी खाती हूँ, और रोटी, वो ये सब एक ये सब रोटी आप ये सब आप एक ही मील में लेते हो या डिवाइडेड रहते हैं मील्स? एक ही मील में लेती हूँ सुबह। नहीं, That's a दैट problem. इज रॉन्ग ना। आप एक टाइम पे बहुत सारी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, फिर एक तरीके की आप फास्टिंग कर रहे हो, फिर बहुत सारी कैलोरीज कंज्यूम करते हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म तो डाउन हो गया ना, ओके, है ना। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए छोटे छोटे रेगुलर इंटरवल्स पे मील्स लो। 3 मील्स तो लो, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसके अलावा मिड मॉर्निंग है, बिफोर डिनर है ना। वो ओके। उसको थोड़ा सा आप डिवाइड करो अपने मील्स को। आप क्या वर्किंग हो? नहीं मैम, हाउस वाइफ हो। हाउस, तो फिर मैम फिर तो आप अपने लिए टाइम थोड़ा निकाल सकते हो ना। हाँ मैम, निकाल सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। तो फिर हाँ, फ्रूट्स कब खाना हो? मिड ओके, मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट में प्रॉपर आप हाई प्रोटीन डाइट लो। हाई प्रोटीन का मतलब होता है आपका जैसे अगर एग लेते हो तो एग, अच्छा आप प्योर वेजिटेरियन हो, हाँ, मतलब प्योर सोया वेजिटेरियन। आपने ले लिया है ना, आपने स्प्राउट्स ले लिए हैं, टोफू सैलेड ले लिया है, पनीर टिक्का ले लिया है, इस तरीके का कुछ भी आप एक सैलेड ऐड कर लो, हाई प्रोटीन ले लो, ठीक है। उसके बाद में मिड मॉर्निंग होता है आपका 11 to 12 के बीच में, उसमें आप एक फ्रूट ऐड कर लो। ओके, फिर आपका ओके, लंच आ गया 2 to 3। देन आप अपना 6 to 7 या 4 to 5, जब भी आपको लगे इवनिंग में आपको ग्रीन टी या लेमनेड लेना है या कॉफी ऐड करना चाहते हो, वो मैं आप ले चाय लो। कॉफी कुछ फिर भी नहीं आपका पीती हूँ मैम। चाय कॉफी कुछ भी नहीं ग्रीन पीती हूँ। टी, नहीं, अच्छा कुछ भी, ग्रीन खाली टी दूध वगैरह पीती हूँ कुछ मैं। नहीं लेते? मैं दूध पीती हूँ। अच्छा, दूध। तो दूध तो चलो हेल्दी है, फिर आप दूध ले सकते हैं इवनिंग में। हाँ, वो गिर गाय का A2 मिल्क लेती हूँ सुबह शाम। हाँ, ले सकते हो आप, वो आप ले लो। और बाद में डिनर आप अपना जो 7-7:30 जो भी करते हो वो आप करो। ओके, अच्छा ठीक है मैम, तो फिर डिवाइड करके ले लूँ सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मेरा कितना वेट होना चाहिए मैम? आपका हाइट कितना बताया आपने? 5'3". हाँ, तो मैम 53 ऐसे होना चाहिए, 53 54। ओके, ठीक है मैम, तो फिर वैसे मैं करती हूँ, आपने बताया वैसे। हाँ हाँ, आप एक बार करके देखो, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे, है ना। 55 आप अपना टारगेट मान के चलो, 53 54 55, इससे ज्यादा नहीं। ओके, ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। Tanya, because this is already 6:34, what we have to do? Shall we take a few more questions? What you suggest? I mean, Minal ma'am, and yeah, please. क्या? अगर अभी कितने हैं क्वेश्चंस दिव्य? I think 3 more has been raised. Minal, Neha ma'am, and Munna Vist, something name is coming. Yeah. आप 2-3 तो हम एंटरटेन कर लेंगे, आप कर दो। Until अच्छा. unless वो आपको मेरी प्रॉब्लम पता है, until unless he comes, he walks in. Yeah, I know that. So I will ask Minal ma'am if you have any specific queries. Please Yes, ask. ma'am. Yeah. Good evening, ma'am. देखिए शीतल Can you मैम hear कितनी me? अच्छी हैं, अपना काम भी कर रही हैं और हमारे साथ इधर ये एंजॉय कर रही हैं सेशन. Can I ask, ma'am? Can you hear Yes, me? please. Yes. Hello, ma'am. Good evening. Yes, we can Good hear you, evening, ma'am. good evening. Please. आप Okay, पूछिए. okay.
सॉरी, मेरी अभी एज 31 है। मेरी हाइट 5'1" ऐसे है, 5.1। हेलो। हाँ मैम, हेलो, आप हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, और मेरा वेट अभी 60 है। मैं इससे हाइट पहले कितना है मैंने आपका? अभी 60, 59 समथिंग, 59 और 60। ओके, और हाइट कितना बताया आपने? 5 फीट 1 इंच। ओके, और वेट है 5'1". 59। हाँ, 5'1", 5'1" is yes, height and 59 is a yes, weight. weight is 59 समथिंग ओके और 31 एज। तो मैं ओके अभी मैंने फेब को ऑलवेज योगा शुरू किया है, अभी 7th और 9th से। इससे पहले मैं जिम करती थी, लेकिन जिम से मुझे इतना इफेक्ट नहीं हुआ। हार्डली 3 to 4 kgs कम हुआ 1 साल में। ओके। हाँ, अच्छा, ओके। और हाँ, तो मैं सुबह 7 और 7 अराउंड 7:15 ग्रीन टी लेती हूँ। 11:30 को दैट विल माय ब्रंच। ओके। ओके और उससे डायरेक्टली 6:30 को मैं डिनर लेती हूँ। 11:30 to 6:30 में कुछ नहीं लेती। ओके और 6:30 के बाद 6:30 मेरा डिनर होता है। उससे डायरेक्टली ओके। सुबह 7 बजे ग्रीन टी, कभी कभी चाय। स्वीट बिल्कुल नहीं अच्छा। खाती, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाती। फिर भी मेरा वेट स्टक हुआ है। 59 है ना, अभी भी उतना ही है। वेट 1। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जैसे मैंने इनको पहले बताया कि मील्स थोड़े से आप अपने ना इंक्रीज करो, ओके। है ना। फास्टिंग बहुत ज्यादा आप करोगे जैसे 5-6 आवर्स की, तो उसमें मेटाबॉलिज्म जितना कम खाओगे मेटाबॉलिज्म उतना कम होता जाएगा आपका। ओके। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूरी होता है फॉर एंटायर डे। ओके। ब्रेकफास्ट के बाद आपका, अगर आप 1-2 शॉर्ट मील्स नहीं भी लेते तो एटलीस्ट देयर मस्ट बी 3 मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ओके, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती। ब्रंच में मैं एक रोटी, दाल और सब्जी। राइस नहीं खाती मैम मैं। तो मैम राइस तो खा सकते हो, कोई Tanya, प्रॉब्लम can you नहीं hear? राइस खाने में। या बीच में वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, अभी आई कैन हेयर। Yes, yes, you are audible, Tanya. ओके ओके, तो मेरा वेट की हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए मैम? मैम 5'1" है आपकी, है तो इट शुड बी अराउंड 51-52। ओके, क्योंकि मेरा है ना, वही पे 53। स्टक हो गया है, उतर ही मैम नहीं थोड़ा रहा सा है। जो भी देखो, आप अगर हम मील्स कम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैलोरीज तो हम ले रहे हैं ना रिक्वायर्ड सफिशिएंट। तो अगर आप सफिशिएंट कैलोरीज ही ले रहे हो तो उसको डिवाइड कर दो आप 3-4 पार्ट्स में। आप डिवाइड करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। ठीक है, योगा आप कर ही ओके रहे मैम। हो, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल मिलेंगे। आप ट्राई करो, ये थोड़ा सा डिफरेंस, कम खाने से वेट नहीं जाता। अच्छा। अगर आप कम खा रहे हो, आपको लग रहा है मैं कम खा रही हूँ जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, वेट नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग सफिशिएंट कैलोरीज ले रहे हो। Then you need ओके। to put some extra efforts, either from the activity part or otherwise from diet part. आपको लग रहा है कि एक्टिविटी मैं इतना ही कर सकती हूँ, बॉडी मेरी अलाउ इतना कर रही है, आप बॉडी हाँ। को ज्यादा थकाओ भी मत। अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी करोगे तो वही होगा कि आप अपना फैट कन्वर्ट कर दोगे इनटू मसल्स, तो आपको वेट लॉस ओके। दिखेगा नहीं। टोनिंग ओके। होगी, इंच लॉस होगा, बट देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ वेट लॉस। यस मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके Neha ma'am. हेलो Are you मैम। there? Yeah, yes, हेलो Neha. मैम, मुझे ना एक क्वेश्चन था मेरा कि मैम मेरी बॉडी में ना मैं बहुत लेजीनेस सी फील करती हूँ कभी कभी। लाइक कुछ भी खाओ ना तो मतलब मेरे को ना डाइजेशन नहीं होता। वो मतलब मैम मैं आपको बताना हाँ हाँ बताइए। दोपहर में भी अगर कुछ खा रही हूँ ना तो वो पता नहीं, अब जैसे गर्मी आ जाती है तो घबराहट और पता नहीं क्या। बाहर का छोड़ो मैम, मैं घर का खा रही हूँ तब भी मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत रहती है।
ये एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास कि रात Yes. में मैं खाना खा लूं तो मुझे अनईजी लगता है, ऐसा लगता है वॉमिट हो जाएगी, और जब वॉमिट हो जाती है देन आई फील कंफर्टेबल। Yes. तो उसका रीजन ये होता है कि टाइप ऑफ फूड आप क्या ले रहे हो। डाइट में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा होंगे तो बॉडी में उसके बाद थोड़ा सा रहता है कि स्लीपीनेस आपको लगता है लेजी हो रहा है। कई बार जब हम फास्ट रखते हैं उसके बाद खाना खाते हैं तो आपको लगता होगा कि मुझे नींद आ रही है। तो ये मैम देखो, जो आप खाना खा रहे हो उसमें क्वांटिटी ऑफ पोर्शन किसका ज्यादा है, उसमें प्रोटीन ज्यादा है या उसमें कार्ब्स ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है एग्जैक्टली। और मैम मैं इतना भी नहीं करती कि मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे नहीं, राइस खा लिया, थोड़ा थोड़ा करके खा लिया। हाँ मतलब वो मेरे को मोशन हाँ, आने शुरू, या तो पेट बहुत ज्यादा दर्द होता है या तो मुझे मोशन आ ओके जाते हैं। हाँ, ओके, मतलब आप ये राजमा। कहना चाहते हैं कि हाँ हाँ, आप बोलिए राजमा। प्लीज, पहले मैं सुनूं आपको फिर मैम बताऊंगी, छोले बताइए मैम। के, या कभी लाइक मैंने पराठा खा लिया दिन में, अगर एक भी खाया तो तब भी डाइजेस्ट नहीं होता हम्म, मुझे। पोहा भी खा लिया लाइक दिन में ब्रेकफास्ट में, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे पेट बहुत हैवी सा हो रहा है, तो मतलब क्लियर आउट हो जाता है बहुत जल्दी मेरा। हम्म। खा के एक डेढ़ घंटे मैम में मोशन होता मुझे है। तो लग रहा है नेहा जी आप सोचती बहुत ज्यादा है, इसलिए हो रहा है ये सब। सही कह रहे हो मैम, सही कह रहे हो। इसलिए होता है आप क्या मैम है ना ये। हर देखो चीज मैम, को सोच रही हैं कि ये पोहा खा लिया तो हो गया, मैंने अब ये खा लिया तो हो हम्म, गया। आपको कहीं ना वो आप स्टक हो गए उस थॉट प्रोसेस के साथ में। मैम मैम स्टार्ट करो माइंडफुल ईटिंग, खाओ तो सोचो मत, यस, बस। है ना। माइंडफुल ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रेस में खाओगे कि अरे अब मैं खा तो रही हूँ पराठा लेकिन मैंने ये खा लिया तो मुझे ये हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ओके मैम। कहीं ना कहीं और ओवर देखो हम, थिंकिंग है नेहा जी, आप उसको एड्रेस करो। आई थिंक वो हाँ आपका मैम, आप फूड सब डॉक्टर हो सही है। क्या? नहीं नहीं, बट इतने सारे क्लाइंट्स को मैं डेली बात करती हूँ, उनसे डील करती हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि व्हेन यू थिंकिंग टू मच अबाउट इट कि इससे ऐसा हो रहा है, इससे वैसा हो रहा है, आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा साइड में रखिए और बोलिए कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा खा रही हूँ, हो जाएंगे हाँ मोटे, हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है। आई थिंक तानिया विल टेल यू मोर अबाउट इट। मैम थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जो जिनमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्ब्स और प्रोटीन हम एकदम से ले लेते हैं ना, जब पराठा खा रहे हो आप सुन रहे हो मुझे नेहा मैम? हाँ मैम, सुन रही हूँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ मैम, आपकी तानिया कैन वॉइस यू हियर मी? पॉज हो गई हाँ थी जी हाँ जी, आपकी। आई कैन या, हाँ, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस। ओके ओके। सो मैंने आपको जैसा बताया ना कि जैसे पराठा है आपका, है ना, ये कार्ब्स हो गया आपका, सीरियल्स हो गया, प्रोटीन अगर हम ले लेते हैं जैसे एकदम से कुछ हैवी खा लिया, तो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हम लोग अपने प्रॉपर शॉर्ट मील्स नहीं लेते हैं। आप थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में नेहा मैम पानी बढ़ा दो, है ना, थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेट रखो आप, और शॉर्ट इंटरवल्स पे खाना शुरू करो, ओके, मतलब मैम सिक्स है ना। टाइम्स बाकी देखो मैम, हाँ 6 टाइम्स ले रहे हो आप? मैम 4 बार तो मैम हो ही जाता है मेरा, थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ 4 बार? अगर तो। हाँ थोड़ा हाँ। थोड़ा करके खाओ। और मैम जो आप जैसे बोल रहे हो ना पराठा जैसे खा लिया या कुछ भी खाया, मैम कई बार क्या होता है पर्सन टू पर्सन ना चीजें वेरी करती हैं हमारी बॉडी से ना। एक ट्रिप्टोफैन करके अमाइनो एसिड होता है बेसिकली, जो कई हम्म। उसमें प्रोटीन सब्स्टिट्यूट में पाया जाता है बेसिकली। तो जब वो रिएक्ट करता है, अब मैं आपको थोड़ा इसको लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मतलब सिक्रीट होते हैं, उनका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसा होता है पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है। तो हो सकता है कि जब आप उस चीज को ले रहे हो तो आपका जो डाइजेशन है प्रॉपर उस चीज को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए शॉर्ट इंटरवल पे छोटा छोटा मील्स ऐड करो आप, ठीक है। हम्म। कोशिश करो कि खाना जो आप ले रहे हो मेजर मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बाद 15-20 मिनट्स वॉक करो आप, ओके, मतलब मैम दिन में 2 बार है वॉक ना। करनी? दिन में 2 बार नहीं, जब जब आपको मेजर मील खाना है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसके बाद आपको बैठना नहीं है, सोना तो बिल्कुल ही नहीं है, आपको थोड़ा वॉक करना जरूरी है। ओके ओके मैम, ये हाँ अच्छी पॉइंट जी। बताया। एंड मैम मुझे ना मैम पीरियड ना मैम 4-5 साल से ना मैम होता होता मैम 2 दिन रेगुलर होता है, अच्छा हो जाता है, हम्म उसके बाद मैम हम्म। धीरे करके ड्रॉप्स में वो होता है, फिर वो बंद ही हो जाता है मेरा।
तो स्पॉटिंग होती है मैम। तो ये तो हर किसी का साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिफरेंट होता है। तो ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है। तो 2 डेज तो आपको मैम आता है ना, और रेगुलर इंटरवल पे आता है। हाँ मैम, मंथली आता है प्रॉपर। पर उसमें मैम मैम कोई 5 प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इट्स नॉर्मल। मैम 5 डेज तो आना चाहिए। नहीं, ऐसा किसने कहा कि 5 डेज आना चाहिए? मैम पहले ऐसे 5 थोड़ी डेज होता है मैम। देखो, मैंने आपको बताया ना कि हमारी हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर मेरा हीमोग्लोबिन 13 से ऊपर है ना, तो भी मुझे 3 डेज स्पॉटिंग रहेगी, 4 डे फ्लो होगा। किसी का हीमोग्लोबिन 11 है तो उसको 3 डेज 4 डेज फ्लो होगा, फिर स्पॉटिंग होगी। वो तो हर पर्सन का अलग अलग साइकिल होता है। उसको आप कैसे, ये थोड़ी आप डिसाइड कर लोगे कि अगर मुझे 2 डेज फ्लो है उसके बाद मेरे को स्पॉटिंग है तो इट्स नॉट नॉर्मल। आपका साइकिल एवरी मंथ रेगुलर है। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको पेन्स है या आपको दिक्कत आ रही है, पीरियड्स आर नॉट रेगुलर, देन इट इज एडवाइस कि आप एग्जामिन कराओ, अदरवाइज इट्स नॉर्मल। ठीक है मैम। Uh, मतलब अब है मैम। I think Tanya, what we can do now, जिनका भी क्वेश्चन रह गया है, आप ना Thank you, अपना ma'am. वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दो, एंड आई विल शेयर विद तानिया, और आपको वो भी अपना वॉइस रिकॉर्ड करके जो है वो उसका स्पेसिफिकली आंसर कर देंगी, बिकॉज इट्स 18 है ना. So that is a better way of giving more answers on these queries. So I would request everyone, जिनका भी कोई query रह गया है आज के सेशन के लिए, आप एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दें. उसमें अपना हाइट, वेट और जो भी आपका कंसर्न है वो उसमें जरूर से बताएं, बिकॉज ये तानिया को हेल्प करेगा कि क्या एग्जैक्टली क्वेरी है उसकी और आंसर करने में. और कोई चीज, अगर कोई भी चीज आपको ऐसा लग रहा है तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दें. वी विल आंसर दोस क्वेरीज. है ना तानिया? Yeah, perfect. Yeah. yeah. Number is our always live yoga number जो आपके पास है, आप उसमें भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं. है ना, आप वहां पर रिकॉर्ड करके अपना भेज दें. ओके. थैंक यू सो मच तानिया एंड एवरीवन. थैंक यू सो मच. और आपने अपने इतने इम्पोर्टेंट टाइम में से टाइम निकाला. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. एंड शेल वी कनेक्ट अगेन. हम लोग आगे भी इस तरह के सेशंस करते रहेंगे विद तानिया मैम. तो आपको आगे भी कोई चीज हो या आपको वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी हो तो वी विल आंसर दोस क्वेरीज. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. ओके, ऑलराइट, बाय. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.